کہ لیگی ارکان قومی و صوبائی اسمبلی پر فنڈز کی بارش کر دی گئی ہے۔ موجودہ ارکان اسمبلی کے حلقوں کو فنڈز دینے کی سفارشات کی گئی ہیں۔ ارکان اسمبلی کو فی کس 10 کروڑ روپے دیے جائیں گے، جبکہ نون لیگی ٹکٹ ہولڈرز کو بھی فی کس 10 کروڑ روپے دینے کی سفارشات بھی کی گئی ہیں۔ خبر یہ ہے کہ لیگی ارکان قومی اسمبلی پر فنڈز کی بارش کر دی گئی ہے۔ موجودہ ارکان اسمبلی کے حلقوں کو فنڈز دینے کی سفارشات کی گئی ہیں۔ ارکان اسمبلی کو فی کس 10 کروڑ روپے دیے جائیں گے، جبکہ نون لیگی ٹکٹ ہولڈرز کو بھی فی کس 10 کروڑ روپے دینے کی سفارشات بھی کی گئی ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری پنجاب میں سیاسی محاذ پر متحرک پیپلز پارٹی کی لاہور میں جلسے کے حوالے سے تیاریاں۔ جلسے کی تیاریوں کے لیے ٹکٹ ہولڈرز کا ہنگامی اجلاس کل طلب۔ سابق صدر نے پیپلز پارٹی کے شعبہ خواتین کا اجلاس بھی آج شام 6 بجے طلب کر لیا۔ آپ کو بتائیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری پنجاب میں سیاسی محاذ پر متحرک ہو چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی لاہور میں جلسے کے حوالے سے تیاریاں بھی جاری ہیں۔ کیا تیاریاں ہیں، یاسین سے جانیں گے۔ یاسین کہیے۔ اور کے جلسے کے حوالے سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے صدر آصف علی زرداری نے جلسے کی تیاری کے حوالے سے ٹکٹ ہولڈرز کا ایک ہنگامی اجلاس آج بلاول ہاؤس میں طلب کر لیا ہے۔ قومی و صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کا اجلاس کل شام 5:30 بجے بلاول ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس میں جلسے کی تیاری کی پیپلز پارٹی کے نئے عمل کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوگا۔ پیپلز پارٹی جلسہ شہید بینظیر بھٹو کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر کرے گی۔ پیپلز پارٹی جلسے کے لیے لبرٹی چوک، ناصر باغ یا موچی گیٹ میں یا دیگر مقام پر کیے جانے کا مکان ہے۔ جلسے میں مرکزی صوبائی قیادت جو ہے خطاب کرے گی۔ بینظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی تھی۔ سابق آصف علی زرداری اس کے علاوہ بھی شعبہ خواتین کا اجلاس بھی طلب کر لیا، جو آج شام بلاول ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس میں خواتین ونگ کی عہدیدار شرکت کریں گی۔ اجلاس میں خواتین ونگ کو متحرک کرنے کے حوالے سے مشاورت ہوگی۔ خواتین ونگ پنجاب کی صدر سبینہ گل آصف علی زرداری کو پنجاب کی ضلعی سطح پر کارکردگی سے آگاہ کریں گے۔ سابق صدر بینظیر بھٹو کی سالگرہ کے ہونے والے اجلاس کے حوالے سے اداروں کو ذمہ داریاں تفویض کریں گے۔ پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی ضلع کونسل کو ضلعی سطح پر متحرک کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے یاسین، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ ماضی میں کسی جماعت نے ریاستی اداروں پر حملہ نہیں کیا۔ جی ایچ کیو پر حملہ کریں گے تو آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ کسی جماعت پر پابندی لگانے کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ سربراہ پی ٹی ایم مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ بات یہ ہے کہ ان کے جو مظاہرے تھے وہ سیاسی نوعیت کے تھے، قانون کے اندر تھے اور سڑکوں پہ تھے۔ کوئی انہوں نے ریاستی اداروں پہ حملے نہیں کیے، کوئی جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا اور نہ کوئی کور کمانڈر پہ کیا، نہ قلعہ بالا حصار پہ کیا، نہ کوئی فوجی قلعے پہ کیا۔ تو ایسی کوئی بات اس وقت تو ہمیں نظر نہیں آئی۔ پھر ان پر تشدد جب ہوتا تھا تو ضرور ہم احتجاج کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے تو ریاستی اداروں پہ حملہ کیا ہے۔ جب آپ جی ایچ کیو پہ حملہ کریں گے اور کور کمانڈر کے گھر پہ جائیں گے، قلعہ بالا حصار میں جائیں گے، آپ چکدرہ کے ان کے قلعے پہ حملہ کریں گے، تو پھر آرمی ایکٹ حرکت میں آئے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ مستقل مدعی بن گئے جب تو۔ لہٰذا اس حوالے سے بالکل ایک نئی صورتحال ہے جس کو ماضی کے کسی واقعے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جلسے ہم نے بھی کیے ہیں۔ کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کا کیس، میاں محمود الرشید کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے محمود الرشید کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ میاں محمود الرشید کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ نعمان نور ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نعمان، میاں محمود الرشید کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی ہیں، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کا یہ معاملہ تھا، جبکہ عدالت نے میاں محمود الرشید کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے میاں محمود الرشید کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی، جبکہ انسداد دہشت گردی عدالت کی جج بہر گل خان نے کیس پر سماعت کی۔ میاں محمود الرشید کو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا۔ میاں محمود الرشید نے روسٹم پر آ کر اپنا موقف پیش کیا۔ میں عدالت سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، جبکہ عدالتی اجازت کے بعد میاں محمود الرشید نے کہا کہ مجھے ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تمام مقدمات میں مجھے بدنیتی کی بنیاد پر ملوث کیا گیا ہے۔ پولیس کی درخواست پر میاں محمود الرشید کو ایک نئے مقدمے میں جیل سے طلب کرایا گیا تھا، جبکہ میاں محمود الرشید کے خلاف تھانہ نصیر آباد میں مقدمہ 1078/23 جو کہ کلمہ چوک پر ٹھیک ہے نعمان، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ نعمان۔
दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में भर्तियों में करप्शन का मामला सामने आ चुका है। चौधरी परवेज इलाही की जमानत बाद गिरफ्तारी दायर कर दी गई है। एंटी करप्शन से जवाब भी तलब कर लिया गया। समाअत 7 जून तक मुलतवी की गई है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमान नूर से। जी नुमान, अपडेट कीजिएगा। जी, एंटी करप्शन अदालत में पंजाब असम्बली में भर्तियों में बदनामियों का ये मामला था, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और राय मुमताज हुसैन सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की जमानत बाद गिरफ्तारी जो है वो दायर कर दी गई है, जबकि अदालत ने एंटी करप्शन से जवाब तलब करते हुए समाअत 7 जून तक मुलतवी कर दी है। जबकि मुलज़मान की जानिब से वकील आसन सीमा साबिक सदर लाहौर बार ने जमानतें दायर की और मौका अपनाया कि इस मुकदमे में परवेज इलाही और राय मुमताज हुसैन का कोई किरदार नहीं है, झूठा मुकदमा और सियासी मुकदमा बनाया गया है। अदालत इस मुकदमे में दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर करके मुलज़मान को रिहा करने का। मौसम गर्मा में भी एलपीजी माफिया सरगर्म। एलपीजी की कीमत में कमी के असरात आवाम तक न पहुंच सके। एलपीजी की सरकारी कीमत 197 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर, मुख्तलिफ इलाकों में 230 से 250 रुपये किलो तक फ़रोख्त जारी। शहरियों का कहना है कि मुतलका महकमे माफिया को लगाम डालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। तफसीलात बताएंगे फ़हद अमीन। जी फ़हद। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एलपीजी की कीमतें कम की गई हैं और आवाम को रिलीफ दिया गया है, मगर ये रिलीफ जो है वो आवाम तक पहुंच ही नहीं सका, क्योंकि शहर भर में कहीं भी ओगरा रेट पर जो है वो एलपीजी दस्तयाब नहीं है। मौसम गर्मा में भी इस वक्त जो है वो एलपीजी माफिया सरगर्म है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त एलपीजी की कीमतों में मनचाहा इजाफा किया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी 220 से 260 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। हुकूमत की जानिब से ओगरा की जानिब से एलपीजी की फ़ी किलो कीमत माह जून के लिए 197 रुपये जो है वो मुकर्रर की गई है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। किसी इलाके में 220 मिल रही है, 230, 240, फिरोजपुर रोड पर चले जाएं 260, आगे वाल्टन चले जाएं 280, 300 तक इसका मिल रही है। मनमाने रेट है, अपनी मर्ज़ी के रेट लगा रहे हैं और ये कहें कि इस पर गवर्नमेंट का कोई अमल दखल है तो कुछ नहीं है। कोई भी सरकारी इदारा जिसमें ओगरा और ज़िला इंतज़ामिया वगैरह दीगर इदारे शामिल हैं, उनकी जानिब से जो है वो एलपीजी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे, माफिया पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से आवाम जो है वो परेशान है। जी बहुत शुक्रिया फ़हद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि निगरान सूबाई वज़ीर सेहत और आईजी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। पुलिस वेलफेयर अस्पतालों की बेहतरी से मुतालिक इक़दाम का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में स्क्रीनिंग कैंप का दौरा करके इंतजामात का जायजा भी लिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं सजाद हुसैन से। जी अपडेट कीजिएगा। मौका पर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जुनैद अकरम ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस के पुलिस वेलफेयर अस्पताल लाहौर को मेव अस्पताल, पुलिस वेलफेयर अस्पताल गुजरांवाला को गुजरांवाला टीचिंग अस्पताल और पुलिस वेलफेयर अस्पताल रावलपिंडी को रावलपिंडी टीचिंग अस्पताल के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। पंजाब पुलिस के ज़ेरे इंतजाम वेलफेयर अस्पतालों को सरकारी टीचिंग अस्पतालों के साथ मुंसलिक करने का बुनियादी मकसद पुलिस मुलाजिमीन को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करना है। प्रोफेसर जुनैद अकरम ने मजीद कहा कि महकमा सेहत पंजाब पुलिस वेलफेयर अस्पतालों को HR समेत हर किस्म की तकनीकी मावनत फराहम करेगी। इस हवाले से महकमा सेहत और पंजाब पुलिस के दरमियान जल्द एक माहिदा जो है वो साइन किया जाएगा। इलाज मुआवजा के हवाले से महकमा सेहत और पंजाब पुलिस का आपस में इंतहाई अहम रिश्ता है। पंजाब पुलिस वेलफेयर अस्पतालों में मौजूदा डॉक्टर्स और अमला की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से अपडेट करने का। LDA में पहली बार आवाम के तमाम मसाइल एक छत तले हल होंगे। LDA में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मॉडल डायरेक्टोरेट तश्कील दे दिए गए। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, आगाह कीजिएगा। के तौर पर मॉडल डायरेक्टोरेट तश्कील दे दिए गए हैं। इसमें डायरेक्टोरेट ऑफ हाउसिंग 8 और डायरेक्टोरेट ऑफ हाउसिंग 9 को मॉडल डायरेक्टोरेट डिक्लेयर किया गया है। दो हाउसिंग स्कीमों से मुतल्लिक तमाम अमूर एक डायरेक्टोरेट में हल किए जाएंगे, जिसमें LDA एवेन्यू और जुबली टाउन और मौलाना स्कीम पर मुश्तमिल एक इंतजामी डायरेक्टोरेट तश्कील दिया गया है, जबकि LDA हाउसिंग स्कीम पर भी डायरेक्टोरेट तश्कील दे दिया गया है। इस मॉडल डायरेक्टोरेट को ये जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। स्कीमों में स्टेट एग्जम्पशन, बिल्डिंग कंट्रोल के तमाम मामला एक ही में देखे जाएंगे। ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया।
चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने MOU पर दस्तखत भी कर दिए। चेयरपर्सन सारा अहमद का यह कहना है कि निजी ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरो में मुकीम बच्चों के लिए इंटर्नशिप का एहतमाम करेगी। इंटर्नशिप के बाद बच्चों को मुलाजमत फराहम भी की जाएगी। इसी पर बात कर लेते हैं सामिया से। जी सामिया, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और निजी ऑर्गेनाइजेशन के माबैन जो है MOU पर दस्तखत कर दिए गए हैं। सारा अहमद का यही कहना है कि हमारा मकसद बच्चों को फनी तरबियत के जरिए माशरे का मुफीद शहरी बनाना है। MOU के तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और निजी ऑर्गेनाइजेशन के माबैन जो है उनको सपोर्ट किया जाएगा और साथ ही साथ बच्चों को जो है वो जॉब फराहम की जाएंगी ताकि बच्चे जो हैं वो मुस्तकबिल में अपने लिए कुछ न कुछ कर सकें, कोई जॉब कर सकें। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लेस्को के ग्रेड 18 के मुतअद्दिद अफसरान को ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तमाम अफसरान को टाइम स्केल प्रमोशन दी गई है। इसी पर बात कर लेते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लेस्को इंतजामिया ने ग्रेड 18 के मुतअद्दिद अफसरान को ग्रेड 19 में तरक्की दे दी है। इस हवाले से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद लेस्को इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एक्सियन फूलनगर फैसल अशरफ को जो है वो ग्रेड 19 में तरक्की दी गई है। इसी तरह एक्सियन SSFT नॉर्थ हाफिज अहमद बिलाल, एक्सियन इलामा इकबाल टाउन फैजान बट की जो है वो ग्रेड 19 में तरक्की हो गई है। इसी तरह डिप्टी मैनेजर दर्दाना यूसुफ, रीजनल स्टोर मैनेजर राव अदनान अफजल को ग्रेड 19 में तरक्की दी गई है। डिप्टी कमर्शियल मैनेजर कपूर इकबाल अनवर और डिप्टी मैनेजर कमर्शियल ननकाना साहब महमूद अली को भी ग्रेड 19 में तरक्की दी गई है। तमाम अफसरान को टाइम स्केल प्रमोशन दी गई है और लेस्को इंतजामिया की जानिब से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। सख्त धूप के बाद अचानक बादलों की एंट्री, सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक लाहौर का दर्जा हरारत 45 डिग्री को छूने का इम्कान है। मौसम का मज़ीद अहवाल बताएंगे ज़ैन अली। ज़ैन, बताइए। जी बिल्कुल, सुबह से गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद अब जो शहर लाहौर का वो मौसम है वो खुशगवार होता हुआ दिखाई दे रहा है। शहर में इस वक्त ठंडी हवा चलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, जबकि सुबह के औकात महकमा मौसमियात की जानिब से आज के रोज़ जो है वो बारिश की कोई भी इम्कान जो है उसका ज़ाहिर नहीं किया गया था। अब भी जो है बादल और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जो है वो अभी तक जो है वो जारी है। जबकि आपको बताता चलूँ तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 38 जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जबकि कम से कम जो है वो 26 डिग्री रहने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। अगर हवा में नमी का तनासुब की बात की जाए तो वो 29% जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर में जो है वो 18 फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवा भी चलेगी, जबकि आइंदा चंद रोज़ में महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया है कि शहर लाहौर का मौसम यूँ ही जो है वो चलता रहेगा। कभी सूरज का पारा हाई होगा तो कभी बादल जो है वो सूरज पर हावी होंगे। आंख मचोली का सिलसिला दोनों के माबैन जो है वो इसी तरह जारी रहेगा, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 45 डिग्री तक जो है वो जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला ऑफिस में प्लास्टिक की अशिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। निगरान वज़ीर आला की आवाम से प्लास्टिक से बनी अशिया का इस्तेमाल तर्क करने की अपील भी की गई है, जबकि मोहसिन नकवी ने माहौलियात के आलमी दिन पर प्लास्टिक की आलूदगी को शिकस्त देने का भी अदा किया है। वज़ीर आला ऑफिस में प्लास्टिक की अशिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। निगरान वज़ीर आला की आवाम से प्लास्टिक से बनी अशिया का इस्तेमाल तर्क करने की अपील।